اس میں ہمارے پارٹی کے بھی کچھ دوستوں نے اپنے کاغذات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. یہ مرحلہ ختم ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اور یہاں میں یہ گزارش کروں کہ آج خبروں میں کافی تبصرے ہو رہے ہیں اس الیکشن کے سلسلے میں بلوچستان کے حوالے سے. خاص طور پہ میں اپنی گزارشات کو صرف بی اے پی اور ان کے اتحادیوں کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بی اے پی کے اتحادیوں میں جے ڈبلیو پی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بی این پی عوامی، پی ٹی آئی اور اے این پی شامل ہیں. وہ پارٹیاں اپنے طور پہ اپنے ایگزیکٹو کمیٹی سے مشاورت کر رہی ہیں، اور جیسے ہی ان کی مشاورت مکمل ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کے صدر جناب جام کمال صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مکمل پینل کا حتمی فیصلہ کریں گے. گو یہ کوشش تو یہ تھی کہ آج جب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہی ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے، لیکن ہر جماعت کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے سیاسی منظرنامے کو دیکھ کے آگے بڑھے. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ تعداد کہ کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے اس کا بھی دار و مدار اس بات پہ ہے کہ یہ اتحاد کتنے پرسنٹ مضبوط ہوتا ہے. اگر یہ اتحاد 70-80% مضبوط ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم 80% سیٹیں لے جائیں گے. اگر اتحاد میں کچھ کمزوری آئی اسی پرسنٹیج سے ہمارے نتائج میں فرق پڑے گا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ خیر و خوبی انجام کو پہنچے گا اور بی اے پی اور اس کے اتحادی انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہوں گے. سر، جمہوری وطن پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں سینیٹر امید سرفراز بگٹی کو کر کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرفراز بگٹی کو ٹکٹ دیا تو ہم الگ ہو جائیں گے. ابھی آپ نے ٹکٹ دیا، وہ آپ سے الگ ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کیسے مانیں گے؟ میں نے جیسے گزارش کی سب سے پہلا تو میں نے جمہوری وطن پارٹی کا نام دیا، تو انشاءاللہ تعالی ان سے ہی بات ہوگی، ان کے تحفظات کو دیکھا جائے گا. اسی طرح ہمارے دیگر جتنی ہماری بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جو بلوچستان بی این پی عوامی ہے، ان سے انشاءاللہ تعالی گفت و شنید ہوگی. ان کے نقطہ نظر کو بھی دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں 2-4-5 دنوں میں جب تک یہ اسکروٹنی کے مراحل گزرتے ہیں، خدا نے خیر کی تو ہم کسی نہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. صاحب، جو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں کچھ شریف میں آ رہے ہیں اور اخبارات میں اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ لوگ ناراض ہیں آپ کی جماعت کے اپنے امیدوار اور ارکان کہ غیر مقامی لوگوں کو جو ہے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. کیا آپ کو بھی اس پہ تحفظات ہے یا کوئی ایسی بات ہے آپ کی جماعت میں؟ ہماری جماعت میں کوئی اس حد تک تو نہیں جتنی فالٹ لائنز اخباروں میں آ رہی ہے، کتنے گروپ بن گئے، ایسی کوئی بات نہیں. جو ہماری 2 نشستیں اب تک ہوئی ہیں اس موضوع پر، اس میں کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جیسے جان جمالی صاحب ہے نصیر آباد سے، نصیر آباد کے دوستوں کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہوگا، کوئی ترجیحات ہوں گی. اسی طرح مکران ڈویژن کے ہیں تو ان سب کے نقطہ نظر لے رہے ہیں. اتنے زیادہ کوئی اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ جو دور نہ ہو سکے، لیکن ہر ایک کا حق ہے کہ اپنا نقطہ نظر پارٹی میں پیش کرے. سر، لیکن جو انتخابات ہیں، آپ کی جتنی سیٹیں ہیں 24 کے قریب آپ کی بی اے پی کی اپنی ہیں، کیا یہ تمام انٹیکٹ ہیں مکمل طور پہ؟ جو آپ توقع کر رہے ہیں سیٹیں آپ ووٹ اپنے لے لیں گے؟ انشاءاللہ تعالی یہ 24 نہیں، میں نے 42 کی بات کی ہے کہ اتحادیوں سمیت خدا نے خیر کی تو اگر کنسنسس ہوا، اگر اتفاق رائے ہو گیا
तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये सीटें की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, अश्मीत पार्लियामेंटेरियन है, इस दफ़ा आप क्या करेंगे जो माजी में आप नहीं कर सके? क्या कमी रह गई थी पहले आपसे, अब आप कर पाएंगे? मेरी ज़ात के आप बारे में पूछ, अगर आप तकलीफ हुए तो आप क्या करेंगे पहले जो नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? वही कि बलूचिस्तान जो है हमारा, इसके लिए अभी तक हम कुछ नहीं खास कर सके। अपने से बहुत सफ़र तय करना है। मैं क्या, मेरी औलाद भी अगर आ जाए, वो भी काम करती रहे, तो हम शायद बलूचिस्तान को किसी हद तक तरक्की दे सकेंगे। तो वही काम पे लगे रहेंगे कि हम कोई ना कोई अपना हक ले सकें इस आइन के तहत। अच्छा अश्मीत साहब, हर कैटेगरी में 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स को टिकट जारी किया गया, यानी एक्सीड किया गया है। इतलात ये हैं कि बीएपी का एक कोर कमेटी का इजलास होगा जिसमें फाइनलाइज किया जाएगा, जिसमें आप लोगों में भी शरीक हो, इस तरह की इतलात चल रही है। क्या वो जो कमेटी ने इससे पहले इंटरव्यू किया, उसके तमाम फैसलों को रद्द किया जाएगा? नहीं, कोई नहीं, वो तो उन्होंने 3-4 का किया। जैसे अभी स्क्रूटनी है, कई कुछ देखना पड़ता है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चंबे की बात नहीं। आमतौर पे एक कवर कैंडिडेट होता है। हमारी क्योंकि तादाद कोई 90 दरख्वास्तें थी, तो 90 से ये 15 तक आई। इस वक्त मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जिन्होंने हमारे बीएपी की से कागज़ दाखिल कराए हैं, उनकी तादाद इस वक्त मेरे ख्याल 15 बनती है। 6 जनरल में, 4 टेक्नोक्रेट में, 3 ख़वातीन हैं और 2 अक़लियत में, 15। तो 90 से 15 पर आए हैं। 15 से इंशाअल्लाह ताला जहां हमने जाना है वहां चले जाएंगे। अश्मीत साहब, पार्टी के आप बानी भी हैं। पार्टी जब से बनी है उसमें कुछ इख्तलाफात भी हुए हैं, कुछ आप भी नाराज़ रहे। इसके अलावा साले भूतानी साहब की क़यादत में भी कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया था। अब जो नसीराबाद सीपी डिवीज़न है वो भी कुछ इनसे भी नाराज़ हैं। तो मतलब इस पार्टी को आप किस तरीके से आप कहते हैं कि हम एक मुतहद होकर इलेक्शन लड़ेंगे? सर कैमरे में जवाब। इसमें कोशिश है ना जी कि ये कहना कि इख्तलाफ नहीं होगा, ये तो अनहोनी बात है। इख्तलाफात होते हैं, पार्टी में भी होते हैं, इत्यादियों में भी होते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको आहिस्ता आहिस्ता, डायलॉग के अलावा सियासत में और कोई रास्ता नहीं है। एक डायलॉग का रास्ता है, वो हम अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सिलसिला शुरू है, सुबह शाम बातचीत हो रही है। और पार्टी में ख़ास तौर पे पहले पार्टी से शुरू होंगे कि पार्टी में मुकम्मल कंसेंसस हो जाए कैंडिडेट्स पे। इत्तेहादियों को इत्माद में लेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करेंगे, ताकि हम जैसे जैसे वक्त 3 मार्च करीब आए तो हम मुकम्मल इत्फाक के साथ अपने वोटिंग की तरफ जा सकें। जान साहब आपसे भी जो आपके इलाके के लोग हैं वो कहते हैं इस दफ़ा सीपी नसीराबाद डिवीज़न की लगता है कि उसमें वो नहीं होगा सेनेट में, क्योंकि जान साहब उस तरफ हैं, बाकी सारे इस तरफ हैं। तो कैसे उन लोगों को आप राज़ी करें? बस वो है, मैं सारी उम्र हम राज़ी करते रहे हैं भाइयों को। 6 दफ़ा इलेक्शन लड़के आए हैं, लेकिन जो हमें अंदरून खाना बातचीत करनी अपनी पार्टी में करेंगे, बातें वाज़े होकर करेंगे। कोशिश ये है कि बलूचिस्तान के रिवायत के मुताबिक ये इलेक्शन हो जाए। माजरत के साथ तो धमा चौकड़ी लगी हुई हमारे बड़े सूबे बड़े इलाकों में, वो बलूचिस्तान में इंशाल्लाह नहीं होगा। सर इस दफ़ा भी कहते हैं कि बाहर से जो कैंडिडेट हैं वो एक साहब के इस्लामाबाद के आने के बाद उनको फाइनलाइज किया गया, जबकि पहले उनके नाम नहीं थे। आपकी बात सुने, ये बाहर के कैंडिडेट आते जाते रहते हैं। पलवल शाह खान चली गई है सिंध, इस तरह आगे पीछे भी और भी है नाम। दूसरे प्रोविंसेस से भी पार्टी देती हमें पार्टी की में आमद हुई है। सितारा अयाज साहबा की, उनकी अप्रिसिएशन फिर पार्टी की क़यादत ने की है। विद इन अंदरून खाना जो हमें इज़हार करना हम कर देते हैं। अभी तक हमें खुल के इस तरह बात नहीं करेंगे। आज कहें ना सर, नहीं हमें अंदरून खाना रहने दें। जो है और आपत्ति पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बलूचिस्तान पे, आप सीनियर सियासतदान हैं दोनों, क्या समझते हैं कि आने वाला जो सेनेट इलेक्शन है उसमें पैराशूटर कितने फीसद तक कामयाब हो सकते हैं खरीदारी के लिए? मुझे तो अजीब लग रहा है आपका सवाल। मैंने तो सारी उम्र अपने वोट एज MP मुफ्त में दिए, पार्टी को दिए। आपका नहीं कहा है सर, बता रहा हूँ। वो मसला तो KPK का हुआ है। PTI वाले अपनी तस्वीरें फिल्म वीडियो चला रहे हैं, बड़े अजीब लोग हैं। पैराशूटर्स ने अब तक हमारे वहाँ लैंड नहीं किया। आपकी इत्तेहाद भी है सर। वो बड़ी इत्तेहादी है। अच्छा सर, ANP के कल असर खान ने कहा है कि हमने 2 दफ़ा जो है बाप पार्टी को वोट दिया है, लिहाजा उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि वो हमें 1 सेनेटर देंगे। तो अभी क्या आपकी अपनी भी लोग खड़े हैं, तो उनका भी एक उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे?
अभी हम इन्हीं चीज़ों के लिए अभी मीटिंग्स में जा रहे हैं। ये नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाए ना, फिर अगले मरहले में हम सबके साथ राब्ते में होंगे उनसे और बातचीत इंशाल्लाह हो- 2 मार्च तक बहुत सी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। और जो कैंडिडेट्स होंगे वो इत्तेफाक के राय से मुतफिका हाँ। इत्तेहादियों के कैंडिडेट होंगे। अपोजिशन भी मार्च का कहती है, आप भी मार्च का कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? वो भी नहीं, हम- अपने कर रहे हैं तौर तरीका सबबंदी, हम अपनी कर रहे हैं। हम 3 मार्च का कह रहे हैं। ट्रेजरी बेंचेस हैं मेहरबानी, उधर मेहरबानी। ऑपोजिशन, ये होती रहती है सेनेट की गेम है। सेनेट का जो इलेक्शन है ना, ये मेंटल टेंशन का इलेक्शन है। एमपीए और एमएनए बनना आसान है बनस्बत इधर जहनों पर जोर देना पड़ता है। और मैं अपने एमपीओ से मजाक करता रहता हूँ जो अभी नए आए हैं कि यार तुम विजन कोई बलूचिस्तान का बनाए। आप लोग एसएनई में फंसे हुए हैं, पीएसटीपी में फंसे हुए हैं, अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र में फंसे हुए हैं। इससे निकलें, कुछ बलूचिस्तान के लिए करें। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।